हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएचडी डिजिटल मैथ्स। आज हम लोग सैम्पल पेपर 3 करेंगे। सैम्पल पेपर 2 ऑलरेडी हमने खत्म कर चुके हैं एंड सैम्पल पेपर 3 का जो भी क्वेश्चन है यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। पूरा सैम्पल पेपर 3 का क्वेश्चन पेपर मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में अटैच कर दूंगी, आप वहां पे जाके व्यू कर सकते हैं एंड सोल्यूशन यहाँ पे वीडियो को रिफर कर सकते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का, अगेन यू शुड मेंटेन द टाइम लिमिट चिल्ड्रन, बिकॉज आपको खत्म करना है 40 क्वेश्चंस। So same general instruction whatever given in the sample paper 2, the same thing, how much time you have to take, how to solve the MCQs. So let's start with the question number 1. What is the value of k in the equation, in the quadratic polynomial 3x square? So first write down 3x square plus 2kx minus 3. Okay, this is the polynomial. If x is equal to minus 1 upon 2 is one of the zero of it. Okay, एक x का value एक दिया गया है, that is minus 1 upon 2. So we will, that is the zero of the polynomial. So what happened when zero of the polynomial given? So polynomial के right side क्या लिखना है? 2kx minus 3 is equal to 0. Now put the value of x as minus 1 upon 2. So 3 whole multiplied by 1 upon 2 whole square plus 2k multiplied by minus 1 upon 2 minus 3 is equal to 0. So 3 multiplied by 1 upon 4 plus minus 2, 2 and 2 cancel हो गया, तो आपको यहाँ पे minus k minus 3 is equal to 0. So 3 upon 4 minus 3 minus k is equal to 0. So यहीं पे एलसीएम निकाल दो, 3 minus 12 upon 4 minus k is equal to 0. So here minus 9 upon 4 minus k is equal to 0. तो k का वैल्यू क्या आएगा? k को RHS में लेके चले जाएंगे बिकॉज ऑलरेडी k के सामने नेगेटिव का साइन है. 9 upon 4 is equal to k. So which option is correct, children, here? Option D. Okay, option D is the correct option. Question number 2 देखते हैं अभी. Clear, this is 9 upon 4. Question number 2. A circle has its center at minus 1 and 3. Okay, तो पहले सर्कल एक ड्रॉ कर देते हैं. Now center this is the center. Okay, center का coordinate point दिया है minus 1 and 3. This is minus 1 and 3. Now next, if one end of the diameter of a circle has coordinates, so चलो diameter पहले draw करते हैं. This is our diameter. Again the coordinate points of the diameter are, one side is 2 and 5. Yes, has coordinates 2 and 5. So एक ही side हमारे पास coordinate points है. So another side we need to find out. Then find the coordinates of the other end of the diameter. So let's take other end x and y. Okay, x and y लिया है. So this is A, B, P. So यहाँ पे ये क्या हुआ? ये diameter है, P is the center. So आपको AB is equal to diameter and P center point. So therefore क्या होगा? AP is equal to PB क्या हो जाएगा? Radius, right? AP is equal to PB रेडियस हो जाएगा. सो यहाँ पे दो तरीके हैं. एक तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जैसे कि AP is equal to PB करके सॉल्व कर पाओगे, उसमें से XY निकलेगा. और एल्स यू कैन यूज द मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? PX1 प्लस X2 अपन 2 और एक था Y1 प्लस Y2 अपन 2, राइट?
सो हमारे पास तो ये है, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे -1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो x1 हम लेते हैं 2 को ले लेते हैं, 2 प्लस x अपन 2। यहाँ पे x2 क्या है, x है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। -2 इज इक्वल टू 2 प्लस x, सो x इज इक्वल टू 2 -2 इज इक्वल टू -4। x का वैल्यू निकल गया। नाउ y का निकालेंगे। 3 इज इक्वल टू 5 प्लस y अपन 2, so 6 is equal to 5 plus y, so 6 minus 5, 1 is equal to y। so यहाँ का कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारा क्या आया, -4 और 1। is that in the option? yes, option A, right? -4 और 1 है, or else you can use the distance formula also here, but वो कैसे लेंदी हो जाएगा। so instead of that हमें पता है P is the midpoint है, तो डायरेक्टली आप मिडपॉइंट का फॉर्मूला डाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इवेल्युएट 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। चलो ये पहले क्लियर कर देते हैं। इसका आंसर ये, इसका आंसर मैं टिक करके रख रही हूँ। बच्चों आप पीडीएफ जब देखोगे उसमें क्वेश्चंस है एंड यू कैन रिफर द आंसर्स फ्रॉम हियर। पहले आप सॉल्व करो, अगर नहीं आ रहा है देन सी द आंसर्स। इवेल्युएट 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट आपको क्या देखना है, tan और cot का इज देयर एनी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इज देयर? यस, एक तो है 1/cot और इसका tan का है 1/cot, cot का 1/tan। उसे छोड़ के हमारे ऑप्शन में क्या है, sec है, cot है, -1 है, tan है। सो हर वक्त एक चीज याद रखना, जब भी cot एंड tan दिया जाता है जस्ट कन्वर्ट बोथ इनटू साइन एंड कॉस, क्योंकि दोनों का रेसिप्रोकल कोशेंट रिलेशनशिप है। आप प्रीवियस वीडियोस देखोगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो उधर फॉर्मूला में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है tan एंड cot का कोशेंट रिलेशनशिप विद साइन एंड कॉस। सो साइन एंड कॉस क्यों? बिकॉज साइन और कॉस का आइडेंटिटी भी जब है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आता है। सो मोस्टली tan और cot दिया जाता है, तो कन्वर्ट इट इनटू साइन एंड कॉस। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए। चलो यहीं पे करती हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं अपन देके नहीं कर रही हूँ। 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपन साइन स्क्वायर ए, बट डिवीजन का साइन दिया है दैट मीन्स अपन है, तो लास्ट में आपको वहां पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एलसीएम लेना है अपन कॉस स्क्वायर ए, डिवीजन का साइन जिसको आता है पूरा कर, मतलब अपन करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यू कैन कंटिन्यू। सी सब बच्चे एक तरह नहीं होते, किसी किसी को समझ में नहीं आता कैसे सिंप्लीफाई हुआ है। सो आपको अगर आ रहा है वैसे दैट इज वेरी गुड, नहीं आ रहा है तो आप डिवीजन साइन देके भी कर पाओगे। अच्छा, नाउ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी है 1 आएगा। मैं इसीलिए बोली थी जब भी tan और cot दिखेगा मोस्टली ट्राई टू कन्वर्ट साइन एंड कॉस। डिवाइडेड बाय 1 साइन स्क्वायर है। नाउ हमें क्या करना है, 1 कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए अपन 1। सो आपको साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए, सो क्या आएगा आपको साइन अपन कॉस का रिलेशन tan स्क्वायर ए। ओके, दिस इज द आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 4. What is the value of x plus y if ABC and PQ are similar? Okay. So this is A, this is tan square A. अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन में वो ऑलरेडी दिया है कि ABC and PQ are similar है, तो सिमिलर हुआ तो साइड का रेशियो हम डाल देंगे पहले। AB अपन PQ इज इक्वल टू AC अपन PR
is equal to BC upon QR. So first we need to find out the value of X and Y. So किसका value यहाँ पे है? We have the value of BC and QR. इसका value हमारे पास है. So first we will take AB upon PQ is equal to BC upon QR. Similarly, we will calculate here AC upon AR is equal to BC upon QR. So AB X दिया है, PQ दिया है 4.8 is equal to BC is given 2, QR is given 4.6. Again write down here AC is given 4 upon AR is given, sorry, PR, not AR. PR is given Y, BC is 2 upon 6.4. So 4.8 into 2 करेंगे. So X is equal to 2 multiplied by 4.8. You will get 9.6. Okay. So simplify करने के बाद X आपको मिलेगा 1.5. Similar way 4 into 6.4 करेंगे. So 4 multiplied by 6.4 divided by 2 is equal to Y. 2 2s cancel, ये simplify हो जाएगा. So here you will get 12.8 is equal to Y. X का value, Y का value हमारे पास है. So what we need to find out? X plus Y. So X plus Y is equal to 12.8 plus 1.5, 3, 4, 1. 14.3 है option में. Yes, option B is the correct option. Okay. Question number 5. If we toss two unbiased coins simultaneously, then the probability of getting no head. यहाँ पे फिर से probability of getting no head है children. तो sample paper 1 में एक word था at most, right? At most मतलब क्या है? At most 1 I think word था sample paper, एक बार check करना. At most 1 मतलब 1 से नीचे हो सकता है, मे बी नो भी हो सकता है, बट 1 से ऊपर नहीं जाएगा. ओके, सैंपल पेपर 2 में हमने किया था वो. सो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी का दिया है, if we tossed unbiased coin simultaneously, first what are the outcomes हम लिख लेंगे. दो कॉइन अगर टॉस कर रहे हैं, either head head head, head tail, tail head, tail tail, right? कितने हो रहे हैं? 4 आते हैं. So the option is what? Sorry, condition is what? No head, मतलब एक ही है. No head मतलब क्या है? एक ही है. So हमारा probability of no head क्या होगा? So required probability is equal to required probability is 1 upon 4, right? But question is क्या है? A plus B का होल स्क्वायर क्या है? So फ्रैक्शन की जगह पे जो A अपन B दिया है, तो 1 upon 4 is equal to A upon B. So therefore A plus B का होल स्क्वायर is equal to 1 plus 4 का होल स्क्वायर. 25 is your correct option. कहाँ पे है? Yes, 25 हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. 5 कंप्लीट हो गया है. चलो 6 क्या है रीड करो. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 891 upon 3500 must be multiplied so it becomes a terminating decimal. अच्छा, terminating decimal होने के लिए डिनोमिनेटर में 2 to the power m multiplied by 5 to the power n फॉर्मेट चाहिए. So let's check. पहले एलसीएम निकालते हैं 3500 का. 2 1s are 7s are 50, again 2 8s are 16, 2 7s are 2 5s are, correct है ना? 16 15 7 14 5, right? Now 5 1s are 5, 5 7s are 35, 5 5s are, again 5 3s are 15, 5 5s are 25, again 5 5 7s are, so 7 1s are. So what are the factors in the denominator?
2 to the power 2 multiplied by 5 to the power 3 multiplied by 7. ओके, 2 to the power m 5 to the power n को छोड़ के कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए. अगर वो नंबर डिनोमिनेटर में है देन वो टर्मिनेटिंग नहीं होता है. सो अभी हमें क्या करना है, 7 को हटाना है. यहाँ पे हटाना है, दैट मीन्स ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, राइट. सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बोला है कि व्हाट शुड बी स्मॉलेस्ट नंबर बी मल्टीप्लाइड. कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर 7. तो क्या होगा, सिंप्लीफाई हो गया, आपको सिर्फ इतना ही रहेगा. सो आंसर इज योर ऑप्शन बी, नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 6 हो गया. नाउ वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 7. द सॉल्यूशन ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. पहले इक्वेशन लिख लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू -4. सो नेक्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस ky, 2x प्लस ky इज इक्वल टू 3. So here a2 is equal to 2, b2 is equal to k and c2 is equal to -3. यहाँ पे 3 RHS में है, वो LHS आएगा तो उसका साइन चेंज होता है स्टूडेंट्स. तो डोंट बी गेट कंफ्यूज. यहाँ पे -4 ऑलरेडी LHS में था इसलिए हमने -4 डायरेक्टली लिखा है. सो नो सोल्यूशन का जो कंडीशन है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नो सोल्यूशन. नो सोल्यूशन का a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपन c2. ओके, सो हम सिर्फ a1 और a1 a2 b1 b2 को कंसिडर करेंगे क्योंकि b2 हमारा k में है और हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ k ही फाइंड करना है. सो राइट डाउन a1 अपन a2 1 अपन 2 इज इक्वल टू 1 अपन k. सो k का वैल्यू क्या है, डायरेक्टली यहाँ पे तो दिख रहा है k इज इक्वल टू 2. सो ऑप्शन हमारा C है. ओके, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन C है. चलो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं. इफ 1 माइनस p is a zero of a polynomial x square plus px plus 1 minus p is equal to 0, then find both the zeros of the polynomial. चलो पहले इसे क्लियर कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं. अच्छा, वहां पे पॉलिनोमियल दिया है एंड एक जीरो आपको गिवन है. पहले राइट डाउन क्वेश्चन. 1 minus p is the zero of a polynomial. So polynomial is x square plus px plus 1 minus p is equal to 0. So x की जगह पे अभी हमें क्या करना है, 1 minus p डालना है. चलो, सो नहीं सॉरी, एक जीरो ऑलरेडी 1 minus p दिया है. सो टेक अल्फा इज इक्वल टू 1 minus p. ओके, सो अल्फा 1 minus p हुआ. नाउ अल्फा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिनोमियल, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपन ए. सो माइनस बी क्या है, माइनस पी अपन 1. सो अल्फा की जगह पे हम लोग 1 minus p डालेंगे. अल्फा का दिया है 1 minus p प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस p. हमने अभी निकाला है, वो अल्फा प्लस बीटा का ही कंटिन्यू कर रही हूं मैं. अल्फा की जगह पे 1 minus p, बीटा एज इट इज रहेगा, माइनस p आ जाएगा. सो 1 minus, चलो ये उधर लेके जाते हैं, बीटा को इधर ही रखते हैं LHS में. बीटा इज इक्वल टू माइनस p प्लस p माइनस 1. यहाँ पे हर एक का साइन चेंज हो गया है. सो बीटा इज इक्वल टू -1. सो एक आपको बीटा का वैल्यू कितना आया, -1 आया. नाउ अभी क्या करना है, -1 का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे अभी. ओके, सो चलो इधर कंटिन्यू करते हैं. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x -1 इन x स्क्वायर प्लस px प्लस 1 minus p इज इक्वल टू 0 है. सो 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -1 प्लस 1 minus p इज इक्वल टू 0.
So here 1 plus minus p plus 1 minus p is equal to 0. So 1 minus p plus 1 minus p is equal to 0. Minus 2, sorry, this is 0. Minus 2p plus 2 is equal to 0. So यहाँ पे भी माइनस p का वैल्यू कितना आया? माइनस 2p इज इक्वल टू -2p इज इक्वल टू 1. p इज इक्वल टू 1 हुआ तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा? अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस p है, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो एक 0 है, एक -1 है, ऑप्शन में है. यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है बट कुछ नहीं है. पहले 1 माइनस p एक 0 दिया है, जस्ट टेक इट एज अल्फा. सो अल्फा प्लस अल्फा का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा में डालोगे, सम ऑफ द जीरोस माइनस बी अपन ए में. so, पहले बीटा निकलेगा, देन अगेन बीटा का एक 0 का वैल्यू आ गया तो हम यहाँ पे डालेंगे, फिर से हमें अल्फा निकल जाएगा. चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं. पहले इसे क्लियर कर देती हूँ. In an isosceles right angle triangle, what is the length of the equal sides of the triangle if its hypotenuse is 6 under root 2 centimeter? अच्छा, hypotenuse दे दिया है आपको. Question number 9. This is a right angle triangle. Okay, hypotenuse is given 6 under root 2. ए बी सी. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या है? ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा. सो लेट टेक दिस एज एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स. सो हमें यहाँ पे क्या करना है? पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करना है. ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. सो ए सी स्क्वायर की जगह पे 6 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. सो दिस विल बी योर 36 into 2. 36 into 2 is equal to 2x square. So 2 cancel हो जाएगा. 36 is equal to x square. x is equal to 36 का अंडर रूट, that is प्लस माइनस 6 आएगा. ओके, प्लस माइनस 6 आएगा, बट लेंथ निकालना है हमें. क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड. लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं आएगा. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज +6. -6 लेंथ नेगेटिव में नहीं आएगा, सो आंसर इज +6. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. Now question number 10. Evaluate the area of the largest circle that can be inscribed in a rectangle. Okay, so पहले एक rectangle, उसके अंदर एक सर्कल बोला है. ओके, उसके अंदर एक सर्कल. सो evaluate the area of the larger circle that can be inscribed in a rectangle. सर्कल कहाँ पे है? रेक्टेंगल के अंदर है. तो साइड 7 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर. ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक. अच्छा, दिस इज द सेंटर. अगर ये 3.5 रेक्टेंगल का जो साइड है 3.5 है, तो वो सर्कल का क्या होगा? वो सर्कल का डायमीटर होगा. उतना ही होगा ना लेंथ. ये क्या होगा? डायमीटर होगा. तो डायमीटर भी कितना है? 3.5 है. सो रेडियस कितना होगा? रेडियस विल बी 3.5/2. राइट. सो ये क्या होगा? सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? 35/10 2 जिसको नहीं आ रहा है, अगेन ये मत सोचना कि मैम इतना क्यों इवेल्युएट कर एक्सप्रेस मतलब ये करके एलैबोरेट करके बता रहे हैं. फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर जिनको प्रॉब्लम आता है, ऐसे नहीं कि सबको आ जाएगा सोल्यूशन करना. सो 5 7s are 5 2s are. तो आपका आंसर क्या होगा? आर का 7/4. सी, आई एम ऑल्सो होम ट्यूटर. सो मेरे पास जितने बच्चे हैं, कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं आता है, ऐसे नहीं कि सबको आता है. सो इसी वजह से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, आर इज इक्वल टू 7/4. सो यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/4 मल्टीप्लाइड बाय 7/4.
कैंसिल हो गया, 2 2s are 11. Now answer is 77/8. ऑप्शन में है क्या? चेक चेक चेक. यस, ऑप्शन सी. ओके, सिंपल है, ज्यादा लेंदी वाला भी नहीं है, सिंपल वाला है. चलो कर रही हूँ, आप लोग कर लेना, इरेज कर रही हूँ. अभी क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. Find the value of p if the distance of the point 4p and 1 0 is equal to 5. So यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला डालेंगे. 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, क्या है फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट. राइट, सो प्लस 0 माइनस p का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 5. सो ये जो रूट है RHS जाके स्क्वायर हो जाएगा. नाउ 1 माइनस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस p होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25. So this is 9 plus p is equal to 25. p is equal to 25 minus 9. कितना आएगा आंसर? है क्या कुछ ऑप्शन? अरे ये तो प्लस माइनस में आया. राइट, क्यों? डिस्टेंस 5 दिया है ना. 25, ओ सॉरी, यहाँ पे भूल गए. p square is equal to 16. So p is equal to plus minus 4. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12 रीड करो अभी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इफ पॉइंट -3k. जस्ट अ मिनट, ये क्लियर कर देते हैं पहले. ओके, क्वेश्चन नंबर 12. What is the value of k if the point -3k divides the line segment joining the points -5, -4 and -2, -3. ओके, यहाँ पे ना हमारा रेशियो है, ना कौन से पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है वो भी नहीं है. तो यहाँ पे दो कैलकुलेशन हमें करने हैं. तो एक पॉइंट दे दिया है, तो उसका जो है -3 और k है. टेक दिस A, B, C. सो A का पॉइंट दिया है -4, 5, -4 एंड B का पॉइंट है -2 and 3. बट यहाँ पे कौन से रेशियो में डिवाइड किया है वो भी नहीं दिया है. सो टेक लेट रेशियो बी p:1, क्योंकि हर वक्त हम k:1 लेते थे, बट यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी k फाइंड करना है, वो एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है. सो हम अल्फाबेट चेंज कर देंगे p:1 रेशियो में. सो p:1 रेशियो का जो फॉर्मूला था, x इज इक्वल टू m2x1 माइनस, आई थिंक नो प्लस, राइट, m2x1 प्लस m1x2 अपन m1 प्लस m2. और y का क्या था? m2y1 प्लस m1y2 अपन m1 प्लस m2. अच्छा, यहाँ पे निकालने के लिए k का वैल्यू ना हमारे पास रेशियो है, बट x का जो है सब है, तो इसमें से हम m1 m2 निकाल पाएंगे. चलो पहले ये डाल देते हैं. सो -3 इज इक्वल टू -2p -5 अपन p प्लस 1. ओके, -2p -5 p रेशियो है. सो पहले इसको कंसिडर कर लिया हमने. चलो अभी क्या करना है, इसको डालते हैं, मतलब c कैलकुलेट करो अभी. सो -3p -3 इज इक्वल टू -2p -5. -3p इधर आएगा +2p, ये -5 + 3. सो -p इज इक्वल टू -2, therefore p इज इक्वल टू 2. p इज इक्वल टू 2 आया तो 2:1 रेशियो. तो रेशियो क्या आएगा अभी हमारा? अगर p 2 आया तो रेशियो
therefore ratio is equal to 2:1, राइट. सो अभी k का वैल्यू निकालेंगे. k इज इक्वल टू, k y कोऑर्डिनेट पॉइंट है, तो k इज इक्वल टू m2y1. सो m2y1 की जगह पे रेशियो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपन 2 प्लस 1. So 6 minus 4 upon 3. So 2/3. आंसर है क्या? यस, आंसर है 2/3. So यहाँ पे ना थोड़ा कंफ्यूजन मत होना. k is equal to 2 into 3. That is ये फॉर्मूला m2 y1 plus m1 y2. So इसको हमने x1 x2 x को सॉरी कंसिडर किया है ये वाला 3 और 4 को. ठीक है. y1 और y2 क्या है? y1 3 है, y2 4 है. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन आया हमारा 2/3. चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अभी क्या है. फॉर एनी 2 नंबर्स a एंड b. अच्छा, 2 नंबर दिया है, एनी 2 नंबर्स a एंड b. 3 is the least prime factor of A and 7 is the least prime factor of B. Okay, so यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 वो बोला है कि A and B दो नंबर है जिनके 3 is the least prime factor of A. So A का अगर 3 least prime factor है, so A क्या है? Therefore A is an odd number, right? अगर A3 किसी का लीस्ट प्राइम फैक्टर है तो डेफिनेटली A इज एन ऑड नंबर. सिमिलरली B का 7 लीस्ट प्राइम फैक्टर है. ओके, लीस्ट प्राइम फैक्टर 7 B का है. सो अगेन देयरफॉर B इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, राइट. बट दो ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सपोज 2 एंड नहीं, 2 इज नॉट ऑड नंबर. 3 एंड 7 को मैं ऐड करूंगी तो हमें क्या मिलेगा? 10. 10 क्या है? इवन नंबर है. सो इवन नंबर का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर रहता है हर वक्त क्या रहता है? नंबर 2. सो हमारा फाइनल आंसर जो है ये नंबर 2 है. यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, फटाफट सोच के आंसर लिख पाओगे. जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने लिखा है, तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन है ही नहीं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. अच्छा, 14 पे क्या दिया है? ट्रायंगल ABC. AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. चलो पहले ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल. ये एक ट्रायंगल हुआ. ओके, ये हुआ बाइसेक्टर. नाउ नेमिंग करते हैं ABC. ABC कर लिया. ये इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी गिवन है, दैट मीन्स BAD इज इक्वल टू CAD गिवन है. AD इज द बाइसेक्टर ऑफ द A. ओके, और आपको दिया है BD4, DC3 एंड AB6. वी नीड टू फाइंड आउट AC. अच्छा, सैंपल पेपर 2 में ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब रेशियो में रहते हैं साइड्स देन एंगल बाइसेक्टर कैसे होता है. तो क्या होता है, जब ये एंगल A को AD बाइसेक्ट किया है तो रेशियो क्या होंगे हमारे? BD/CD इज इक्वल टू AB/AC, राइट. बिकॉज ABD ट्रायंगल और CAD ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे तो BD/CD is equal to AB/AC. But this should be you should write this ratio whenever the vertex angle, जो ऊपर का एंगल है वो बाइसेक्ट करके जो लाइन आता है बेस साइड को टच करता है, देन ओनली ये रेशियो आपको लिखना है.
BD अपन CD इज इक्वल टू AB अपन AC. नाउ BD की जगह पे 4/3 इज इक्वल टू 6 अपन AC. चलो 2 2s are 2 3s are. So AC is equal to 9/2. That means 4.5 cm. कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन A is the correct option. ये ऑलरेडी सेम सैंपल पेपर 2 में भी था. एंगल बाइसेक्ट किया था और वही लाइन बेस साइड को टच किया था, तो रेशियो क्या होगा? BD अपन CD इज इक्वल टू AB अपन AC. सो यहाँ पे भूल मत जाना. और आपको एक प्लस पॉइंट है, MCQ है, सो कोई भी थियोरम साइड में लिखने की जरूरत नहीं है. सब्जेक्टिव होता तो डेफिनेटली यू हैव टू मेंशन द थियोरम. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. चलो अभी क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल? क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ द सर्कल. So whose circumference is 44? So circumference formula 2 pi r is equal to 44. 2 into 22 upon 7 multiplied by r is equal to 44. सिंप्लीफाई करते हैं. 222 मल्टीप्लाई करेंगे तो 44. ये कैंसिल कर दिया. r इज इक्वल टू 7. r मिल गया. अभी एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट पाई r स्क्वायर अपन 4 फॉर्मूला. सो पाई की जगह पे 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 4. r की जगह 7 into 7. सो सिंप्लीफाई करो. 7 7 कट. 2 2s are 2 11s are. So 77/2 cm square is the area of the quadrant. Option A is the correct option. Question number 16. The HCF of 85 and 153 can be expressed in the form of 85m minus 153. Okay. So 85 and 153 का HCF जो है in the form of 85 and 153 लिख सकते हैं. So HCF is equal to 85m minus 153. So पहले क्या करते हैं? 85 and 153 का इंडिविजुअल फैक्टर्स निकाल देते हैं. 85 का फैक्टर्स 3 से नहीं जाएगा, सॉरी. सो 5 से जाएगा. 5 1s are 5, 5 7s are 17 1s are. सो 85 के फैक्टर्स क्या है? 5 into 17. सिमिलरली 153 का फैक्टर्स निकालो. 3 5s are 15, 3 1s are again 3 1s are 3 7s are 17 1s are. So 153 का क्या है? 3 into 3 into 17. So what is the HCF here? दोनों का हमने फैक्टर्स निकाल दिया, तो HCF हमारा मिला है 17. That means but दिया क्या है? This is the HCF दिया है. So therefore 85m minus 153 is equal to 17. 85m is equal to 17 plus 153. 85m is equal to, चलो ऐड करो. 10 7 1 170 and m is equal to 170/85. सो हमारा आंसर है 2. 85 2s are 170. ऑप्शन डी. ओके. चलो क्वेश्चन नंबर 17. द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज. इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है बच्चे. तो यहाँ पे क्या है? प्राइम नंबर के फैक्टर्स क्या होता है? द 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. अभी 3 है प्राइम नंबर फॉर सपोज 73 प्राइम नंबर है, उसके फैक्टर्स क्या है? 3 into 1 है. तो कितने फैक्टर्स हुए? ओनली 2 फैक्टर्स आर देयर. ओके. द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज 2. चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. इजी लग रहा है सैंपल पेपर 3, राइट? सैंपल पेपर 2 से सैंपल पेपर 3 इजी लग रहा होगा आप लोगों को, होपफुली. मुझे तो लग रहा है, क्योंकि एक बार फॉर्मूलास आपको लर्न हो जाएगा ना, तो इजी है. चलो
Evaluate the distance between the point A sin alpha और एक पॉइंट दिया है -B cos alpha. ये एक पॉइंट है. अनदर पॉइंट है -A cos alpha B sin alpha. इसका डिस्टेंस फॉर्मूला डालना है. चलो डालते हैं. तो फिर -A cos alpha -A sin alpha x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिखूं x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट. ओके, सो यहाँ पे आएगा आपका b sin alpha माइनस ऑफ माइनस cos alpha का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट. कोई जगह नहीं. चलो अच्छा, -A कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ पे क्या बचेगा अभी? cos अल्फा प्लस sin अल्फा का होल स्क्वायर प्लस b कॉमन ले ले. क्या कॉमन जाएगा? यस, b कॉमन ले लेते हैं. sin अल्फा प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर के अंदर ही रहेगा. okay? ये भी होल स्क्वायर के अंदर ही रहेगा. अभी तो होल स्क्वायर में से हमने -A लिया है. अभी क्या होगा? ये A स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos अल्फा प्लस sin अल्फा का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos अल्फा प्लस sin अल्फा का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट पे आएगा पूरा. अभी अगेन ये टर्म में cos अल्फा sin अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा, ये कॉमन ले लेंगे. सो आपको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एक टर्म और एक आएगा cos अल्फा प्लस sin अल्फा का होल स्क्वायर का और एक टर्म अंडर रूट. सो इसका तो रूट हट जाएगा बिकॉज स्क्वायरिंग है. तो ये रहेगा एज इट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ये आपका साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा किया है मैंने क्योंकि ऑप्शन में वही है. देखो ये और ऑप्शन डी सेम है. यस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में आएगा एंड साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा. क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं. फॉर द गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स x square minus 5 minus 1, if alpha and beta are its zeros, then find the value of alpha square beta plus alpha beta square. So alpha beta है तो obviously हमें क्या करना है? sum of the zeros and product of the zeros निकालना है. पहले polynomial लिखो. px is equal to x square minus 5x minus 1. Here alpha plus beta is equal to minus of minus 5 upon 1, that is 5. Formula क्या था? minus b upon a. Every time whenever I am solving, I am trying to write all the formulas. ओके, सो उससे क्या होता है, आपको भी प्रॉब्लम ना हो करके हर एक फॉर्मूला मैं वहां पे मेंशन कर रही हूँ. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस नहीं सी अपन ए, सो -1 अपन 1, दैट इज -1. हो गया. सो अभी चलो, अभी दिया क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर. वो क्या होता है, रेगुलर प्रैक्टिस में अगर रखोगे, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग फॉर्मूला लिखने का, तो आपको जरूरत नहीं है हर बार क्या मतलब लर्न करना है या पढ़ना है, तो ऑटोमेटिक वो प्रैक्टिस में आ जाता है. ये सी अपन ए है. सो चलो कॉमन ले लेते हैं अल्फा बीटा. तो इसमें क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा रहेगा. वैल्यू डालना है अल्फा बीटा का -1 इंटू अल्फा प्लस बीटा का 5. सो करेक्ट ऑप्शन इज -5. आया आंसर? यस. अभी क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं. चलो पहले ये क्लियर कर देते हैं. लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए चिल्ड्रन. बहुत ही इजी था सैंपल पेपर. अभी 20 क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है, उसमें से बोलते हैं कि ओनली 16 ही करना है आपको, 4 नहीं चाहिए. 4 चाहिए ही नहीं. मतलब सोचो कितना इजीली हो जाता है सैंपल पेपर. ये इससे सेक्शन ए. द सेंट्रॉइड of ABC
ट्राइंगल एबीसी विद वर्टाइसेस, सेंट्रोइड का फॉर्मूला x1 + x2 + x3 अपन 3, और एक हुआ आपका y1 + y2 + y3 अपन 3। डन, 2 हो गए। अभी सिर्फ क्या करना है, वो पॉइंट्स डालना है। चलो, -4 + 2 + 2 अपन 3, और एक आएगा आपको 6 + -2 + 5 अपन 3। सो ये तो 0 आ गया। यस, 0 आ गया है फर्स्ट वन, क्योंकि -4 + 4 0। ये आपका आएगा 6, 11, 11 - 2 9, 9 अपन 3 3। ये आपको आएगा 3। कैलकुलेशन करोगे तो ये 3 आएगा, ये 0 आएगा। 0 3 है क्या? हाँ, देखो यहाँ पे भी छोटा कंफ्यूजन दिया है। पहला वाला 3 0 दे दिया है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, चलो 0 3 और 3 0 सेम ही है, कर देते हैं 3 0 को। यहाँ पे भी छोटा कंफ्यूजन दे दिया है। सो जो x के साथ जो आएगा वो पहला आएगा, y के साथ जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो सेकंड वाला है। ओके, चलो हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, एंड साइमल्टेनियसली आप लोग भी प्रैक्टिस करो। इसका जो क्वेश्चन है मे बी आपको वीडियो में विजिबल नहीं होगा क्लियरली, सो इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी। सो वहां पे जाके आप पीडीएफ पूरा क्वेश्चंस व्यू कर पाओगे, एंड यू कैन सॉल्व। जिसके पास बुक नहीं है, डोंट वरी। अगर आपको और भी कुछ सपोर्ट चाहिए, कोई क्वेश्चन का या कोई पीडीएफ का, देन यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन। जो कोई भी सपोर्ट चाहिए चिल्ड्रन, अगर किसी के पास बुक नहीं है, इवन दो इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ द ओसवाल का भी अगर सैंपल पेपर का पीडीएफ आपको चाहिए, देन जस्ट write in the comment section. So I will mostly try to upload, and I'm mostly trying to, after completion of the EduCard, definitely OSWAL भी आपको करवा दूंगी। Let's see, hope for the best। टाइम हमारे पास उतना नहीं है क्योंकि 4th को ही पेपर है, बट ठीक है, एक भी सैंपल पेपर अगर आप लोगों ने कंप्लीट किए, पूरा कंप्लीट एक सैंपल पेपर अगर कर लिए, तो 70 to 80% आप कवर कर पाओगे। ऐसे नहीं है कि 4-5 बुक्स फैला के रखो, हर एक बुक से करो। नो नो, डोंट डू दैट। कोई एक सैंपल पेपर रिग्रेसिवली वही एक करो, इतने सारे बुक्स ओपन करके करने की कोई जरूरत नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, एंड प्लीज चिल्ड्रन, एंड प्लीज एवरीवन हुएवर वाचिंग माय चैनल, प्लीज शेयर कीजिए, जिससे कि और थोड़ा लोगों के तक जाएगा, एंड दे कैन ऑल्सो रिफर द सेम वीडियो फॉर देयर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, और जो भी घर पे हैं। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल PhD डिजिटल मैथ्स। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद सेक्शन बी। सेक्शन बी करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।